Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. How can we reduce our overweight is a burning issue of nowadays for those person who are fatties. No doubt, nowadays diseases have been increased with every passing day. So today my vlog is very important. It is relating to the morning walk and reducing weight techniques. Please remain with me. I will tell you about all these techniques. Ladies and gentlemen, question is it possible to reduce a weight? Yes, of course it is possible. For example, before the summer vacations, my weight was more than 120 or 121, 122 kg. Now I am on 98 kg. 22 kg I have reduced during my summer vacations. Ladies and gentlemen, early to bed and early to rise is a key to success in every walk of life. If a man wants to become active, if he wants to become energetic, if he wants to become intelligent, then he should must go early to bed and early to rise. In short, sound sleeping is the compulsory. If anybody has less sleeping, then he become lazy. तो इसके लिए जो सोना है वो बहुत ज़रूरी है। नींद अगर हमारी पूरी होगी तो हम एक्टिव रहेंगे, हम चुस्त रहेंगे, हम एनर्जेटिक रहेंगे और हम कॉम्पिटेंट होंगे। देन ही और शी शुड मस्ट ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, ही शुड सम से प्रेयर्स, इफ़ ही हैज़ टाइम he should must recite the holy Qurans and then leave the home for a walk. Ladies and gentlemen, only walk does not play a key role. Along with walk, you must have to control your diet. In diet, oily, spicy items should be avoided at each and every cost. Diet should be very simple. It should be consisted on less sugars, less oils and less fatty items. Along with walk, people also choose different techniques like jogging, running, some go to gyms, some play different games. These are all techniques which play a key role in reducing the weights, and these games keep the man body healthy. Ladies and gentlemen, the area for a walk not be a small. It should be a big, it should be a wide, it should be a big ground or it should be a long track. The ground should be likely to that this is a wide and long grounds. One can observe, one can see behind me. This is a grounds. It is too much enough for a walk, for a jogging, for a running. How much time is required for a walk? So it should be upon you. If you have a capacity for one hour, for 1.5 hours, for 40 minutes, for 50 minutes, it depends upon you. इसमें ये भी होता है कुछ लोग तेज़ जो हैं वो रनिंग करते हैं, उनके लिए आधा घंटा काफ़ी है। जो लोग स्लो चलते हैं उनको 1 घंटा जो है वो वॉक ज़रूरी है। So after walk, if anybody feel thirst, he must drink waters. After drinking water, he should must eat fruits, fresh fruits. He should must have eggs, boiled eggs must should be eat. Then after 1 hour, ब्रेकफास्ट जो है उसको लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए? ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ें लें जो ऑयल लेस में हों, जिसमें आप एग जो है वो अगर आप बॉयल करके खाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। फीके जो ब्रेड हैं वो लें तो वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। फ्रेश जो जूसेस हैं लिक्विड फॉर्म में वो लिए जा सकते हैं। ये दूध वाले जो मिल्क शेक हैं दैट शुड बी अवॉइडेड। नो डाउट इनिशियली मैन हैज़ टू फेस मल्टीफेरियस प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल ही फील पेन्स इन हिज लेग्स, ही फील पेन इन हिज बैक बोन्स। तो बहुत सारे मसले होंगे। ऐसे फील होगा जैसे टांगें टूट रही हैं, टांगों में जान नहीं है। जो बैक बोन है वो बिल्कुल वीक हो जाएगी, उसमें भी पेन शुरू हो जाएगी।
तो ये नाम है कंसिस्टेंसी का, रेगुलरिटी का, पंक्चुअलिटी का। आप जो है ना वो कमिटेड हो जाएं, एक मुसम्मम इरादे के साथ ज़हन में ये रख लें कि यू हैव टू डू, यू कैन डू इट। विल पावर इज़ कंपल्सरी, विल पावर इज़ नीडेड टू डू दैट। अगर आपकी विल पावर है ना तो आप किसी भी चीज़ को डिफ़ीट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप शिकस्त दे सकते हैं। तो देखें, अगर एक शख्स ओवर वेट है, वो फैटी है, तो ये ज़िंदगी जो है उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये ऐसे ही है जिस तरह अगर एक शख्स 20 या 25-30 किलो का उसका इजाफी वेट है, तो ऐसे ही मिसाल है जिस तरह एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को एक बैग दे दिया है जिसका वेट 20 या 25 किलो है। वो एक आधा घंटा 2 घंटे के लिए तो उठा सकता है, लेकिन उसमें भी वो फील करेगा कि यार क्या इसको ना मुसीबत पड़ गई है, मुझे ये इतना वज़न दे दिया है। लेकिन थिंक डीपली, अगर एक शख्स का वज़न ही इतना ज़्यादा है, ही हिमसेल्फ इज़ ओवर वेट, तो वो इतना जो वज़न है रोज़ाना के बेसिस पे जो है डेली बेसिस पे उठा के जाता है, तो उसको मल्टीफेरियस प्रॉब्लम जो होते हैं वो हो जाते हैं। अभी आज के दौर में जो ये डिजीज़ हैं, स्पेशली जो हार्ट अटैक्स है, ये बढ़ रहा है। इसकी मेन रीज़न ही हुई है कि लोग जो हैं वो फैटी हो रहे हैं। फैटी जो जब बंदा होता है तो ये जो चर्बी है ये ब्लड्स के अंदर बढ़ जाती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो हार्ट पेशेंट जो है इनिशियली उसको ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर वो वॉक नहीं करता, वो डाइट अपनी जो है वो लेस ऑयली नहीं करता, वो अगर डाइट में भी ऑयली चीज़ें ले रहा है, स्पाइसी ले रहा है, साउंड स्लीपिंग भी उसकी नहीं है, वॉक जॉगिंग ये सारी चीज़ें भी नहीं हैं, तो डेफिनेटली उसको फिर हार्ट का प्रॉब्लम होना ही है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो दोपहर का खाना है उसमें राइस हैं, बॉयल राइस जो हैं वो लिए जा सकते हैं, उसमें जो चने हैं वो बॉयल लिए जा सकते हैं, उसमें जो बाकी चिकन है, बॉयल चिकन, वो लिया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी खुराकें हैं जो दोपहर को खाई जा सकती हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ऑल इज़ पॉसिबल, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी की ज़रूरत है। किसी दिन मैं अपना जो व्लॉग है उसमें आपको पिक्चर दूंगा जो ओल्ड थी। अब ये शर्ट पहले मुझे फिट नहीं थी, अब ये देखें कितनी वाइड हो चुकी है, खुली है। तो ये जो इंसान है ये सब कुछ कर सकता है, इसकी विल पावर हो, इसमें कंसिस्टेंसी हो, रेगुलरिटी हो, पंक्चुअलिटी हो, इसके अंदर एक पैशन हो, जज्बा हो, तो ऑल इज़ पॉसिबल। व्हाट मैन फील आफ्टर लूजिंग अ वेट, तो बड़ा इजी फील करता है, वो दौड़ता है, भागता है, वो एक्टिव रहता है, उसका माइंड जो है वो बहुत जल्दी इजी हर बात को क्लिक करता है, उसका दिल चाहता है कि वो लाइफ में कुछ काम करे, वो राउंड द क्लॉक काम करने के लिए तैयार होता है। वो अगर 6 घंटे उसकी बॉडी में हैबिट डेवलप हो जाती है नींद की, तो उसके बाद वो सारा दिन जो है रिमेनिंग जो 18 हॉर्स हैं वो अपने काम के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, हर जगह पे जो है ना वो आसानी से दस्तयाब हो सकता है अगर वो अपने वेट को ना लूज़ कर लेता है। कुछ बातें जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा लूजिंग वेट, उसके बाद होता ये है कि जो बॉडी है उसके अंदर पहले की तरह डाइट नहीं होती, ये जो ब्लड प्रेशर है ये लो होना शुरू हो जाता है। तो ये कॉमन जो है ना ये इसकी अलामतें हैं, ये सिंबल्स हैं। तो ये इससे यू डोंट टेक टेंशन, इससे आपने उसको कंट्रोल करने में जूसेस लेने हैं, जो फ्रेश फ्रूट हैं वो खाने हैं, तो इससे जो है ना ये कंट्रोल हो सकता है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो हमारी यंग जनरेशन है वो बिफ़ोर एज जो है बहुत ज़्यादा फैटी हो रही है, ओवर वेट हो रही है, तो उसमें हमें रोल अदा करना होगा। जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स जो हैं, हमें उनको गाइड करना होगा, वॉक के बारे में बताना होगा, रनिंग के फ़ायदे क्या हैं, जॉगिंग के फ़ायदे क्या हैं, प्ले एनी गेम जो है, क्रिकेट है ये और बहुत सारी गेमें हैं जिसमें ये आ जाता है, फुटबॉल है, हॉकी है, ये टेनिस है। तो ये जो गेमें हैं सारी, दीज प्ले अ की रोल इन रिड्यूसिंग वेट्स एंड टू कीप मैन अ हेल्दी। तो ये हर सूरत में हमारी जो यंग जनरेशन है हमें उन्हें ये बताना होगा, हमें उन्हें ये कोच करना होगा, गाइड करना होगा कि वॉक जो है उसके कितने बेनिफिट्स हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के दौर का ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये जो फास्ट फूड्स हैं ये रूटीन बन गई हैं। ये जो बिरयानी है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये समोसा है, चिकन है, फ्राइज़ हैं, चिप्स हैं, ये बहुत सारी आइटम्स जो हैं ये रूटीन बन गया है और ये बच्चे जो हैं इसके आदी हो गए हैं।
बच्चों के अगर आप लंच बॉक्स भी देखें तो ये चीज़ें लाते हैं। जो एक सिंपल फूड है, ये जो ब्रेड है, ये जो रोटी है या पराठा है, उससे वो अवॉइड करते हैं। दे फील शेम वाइल हैविंग सम लंच इन देयर लंच बॉक्स। हकीकत है, अगर मेरे पास 35-40 स्टूडेंट्स हैं तो हार्डली उसमें 3 से 4 स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास ये जो ना अच्छी डाइट पराठा या सिंपल जो है रोटी होगी। बाकी सारे जो हैं वो होममेड नहीं हैं, बाज़ार से चीज़ें लेके आते हैं। तो ये जो चीज़ें ये हाईली हार्मफुल्स हैं, ये हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पेक्ट करती हैं। हमें अपनी नस्ल को बताना होगा कि जो सिंपल या बैलेंस्ड डाइट्स है उसके क्या फ़ायदे हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा जो व्लॉग है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।